Okay, I'm just going to carry on with. I wanted to complete last Sunday. Ajay wouldn't be there this Sunday. That's why I let him preach his word last Sunday. और भाई अजय जो थे उन्होंने पिछले रविवार को प्रचार किया, आज वो करने वाले थे, आज वो बाहर जाने वाले थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि पिछले हफ्ते करिए. But I just wanted to complete the word on the resurrection power, living in the power of the resurrection. और जो हमारा बचा हुआ भाग था कि हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जिए, उसको अब आज हम पूरा करेंगे. All right, the very title is saying that because of Jesus was raised from the dead, there's a way that we can live with that resurrection power. और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया था और उसी सामर्थ्य के साथ, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ हम जी सकते हैं. And we saw the ladies who went to the tomb with spices to anoint the dead body of Jesus. फिर हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं तीसरे दिन को जब जाती कब्र पे वो मसालों को लेकर, and instead there was an angel there who said, he is not here, he has risen. पर वहां पर हम देखते हैं कि वचन कहते हैं वहां पर एक फरिश्ता आता है, स्वर्गदूत आता है और वो ये कहता है कि वो यहाँ जी उठे हैं. That statement was the beginning of victorious living for everyone who believes in Christ. और ये जो वाक्य था ये शुरुआत था हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मसीह के लिए कि वो विजेता से जिए. Okay, the resurrection isn't just a past event, it is a present power. और पुनरुत्थान जो है बीता हुआ कोई ऐसा इवेंट नहीं है, बल्कि अभी का जो हुआ है और हमेशा के लिए चलते रहने वाला एक It's the power that changes how we live even today. और वो ऐसा सामर्थ्य है जो आज भी बदलता है जैसे हम रहते हैं. So we saw two things last time. और पिछली बारी जो था हमने दो चीजों को देखा. The resurrection, firstly we saw the resurrection confirmed who Jesus said he was. सबसे पहली बात, पुनरुत्थान ने ये साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वो हैं. We saw in Romans 1:4 he was declared to be the Son of God in power by his resurrection. और जो उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय के बारे में है. Okay, so his resurrection is God's stamp of approval and the final proof of who Jesus claimed he was. उसका पुनरुत्थान परमेश्वर की एक मोहर है. It proved that everything he said and taught was true. और वो इस बात की पक्की मोहर है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बताया और सिखाया वो सच है. What he taught about sin and forgiveness and the kingdom of God and eternal life, it's all true. परमेश्वर के राज्य के बारे में, क्षमा के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सिखाया वो सही था. And we saw finally he said all authority in heaven, earth, under the earth is mine now. और वो इसलिए वो कहते हैं कि सारा अधिकार पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी का मुझे दिया गया है. Amen. Amen. And so today we should be living in the truth of the resurrection, in the fact that Jesus has all authority for everything in our lives. और पुनरुत्थान का सामर्थ्य की तथ्यवाद ये है कि हम उसमें जीते हैं और उन सारी चीजों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है. Okay, I left you with this question. Do we live like Jesus really is Lord of everything? और क्या हम इस तरीके से जीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह वाकई में है? Okay, secondly, दूसरी बात, we saw the resurrection proves the utter power of God over sin. और पुनरुत्थान दिखाता है परमेश्वर का सामर्थ मृत्यु के ऊपर. In Romans 4:25 we saw this. रोमियो 4:25 में हमने देखा he was delivered over to death for our sins. और उसको और प्रभु यीशु मसीह को हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया. All right, the cross was punishment for our sin which was paid completely and fully. और क्रूस जो था हमारे लिए था जिसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अदा करी. And the second part of verse 25 says he was raised to life for our justification. और हमारी धार्मिकता के लिए उसको फिर से जिलाया गया. So the resurrection was proof that the punishment for our sin is fully accepted. और पुनरुत्थान ये बताता है कि हमारे पाप का जो बलिदान था उसको पूरी तरीके से ले लिया गया है. And that the realm of sin cannot touch us now.
और अब जो पाप का जो आयाम है वो अभी हमें कभी छू नहीं सकता। Amen. I gave you that illustration और आपको बताया था मैंने, that in this side there is the law और यहाँ पर जो है नियम है, that says we have to do everything, और जो बताता था कि हमें ये सारी चीजें करनी है। and if we don't do even one thing अगर आपने एक चीज भी नहीं करी in the law, उस नियम में, it says the wages of sin is death. और वो ये बताया पाप की मजदूरी मृत्यु है। So there's law. और यहाँ पर हमने If we व्यवस्था है, if we break the law, there's sin, अगर हमने व्यवस्था को तोड़ा तो पाप है, and if we sin, there's death. और हमने अगर पाप किया है तो मृत्यु है। This whole thing is one realm. और ये पूरा जो एक पूरा स्तर है, एक आयाम है, It's the realm of law, और ये जो है व्यवस्था का the आयाम है, realm of sin, और ये पाप का आयाम है। and the maximum in this realm that you can get is death. और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जो मिल सकता है वो है मौत, मृत्यु। When Jesus died, और जब प्रभु यीशु मसीह मरे, he was in this realm. वो ये जो था इस आयाम में नहीं थे, But when he rose again, और जब वो जी उठे he was in another realm वो एक और दूसरे आयाम में थे, where there's no sin, जहाँ पर कोई पाप नहीं, where there's no death. जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं, There's only resurrection and its power. और उसके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। Amen. And he has brought us here. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां लेकर So we आया। are not in this realm. अब इस स्तर में नहीं है, इस जगह पर नहीं है। The resurrection is beyond the realm of whatever law could give, which was death. Resurrection doesn't, the law realm doesn't have an answer because this is resurrection. और पुनरुत्थान जो एक नया आयाम है जो कि सारे आयामों के ऊपर आता है। And the fact in resurrection we saw he was raised to life for this thing, justification. और उसको जिलाया गया ताकि हम धार्मिक ठहरें। And we saw last time we are in a realm that though we know we've sinned, but God justifies us. और हम इस बात को जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद जब जिस स्तर पे और जिस आयाम में हम हैं, वो पर परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहराया है। Yeah, that means Satan will say, but he has done this and she has done this and she has done this. Last 3 months she's been doing this. और हम जब लोग हमसे कहेंगे अरे इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा, पिछले 3 महीने से बोलते हुए आएंगे। And God will say, I justify her. और परमेश्वर कहेंगे मैं धर्मी ठहराता हूँ। I've considered your accusations. और तुम्हारे जो दोष है उनको मैंने देखा है। But Jesus died this side for all those sins. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सारे पापों के लिए मारा गया। They are in a realm of justification. और ताकि हम जो है धार्मिकता के आयाम में आ सकें। And we closed with this, that we should be a people because of the resurrection who do not live with condemnation, because Romans 8:1 says, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. और इसीलिए जो है आप किसी के दोष में आप मत जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियो 8:1 में, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर है, मसीह में है, उनके ऊपर किसी भी तरह की दोष नहीं लगा, दंड की आज्ञा नहीं है। Amen. So we should be the happiest people on earth. और हम जो है धरती पर सबसे सब खुशी से भरे हुए लोग होने चाहिए। So you are allowed to smile, what Alex said, because I'd love to see some smiles in the room. और आप चाहे तो मुस्कुरा सकते हैं। Amen. You're justified. आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। If you've believed in Christ, you're justified. अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। Come on, tell someone you're justified. अपने बाजू वाले से कहिए आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। Amen. He should be jumping up. आपको तो उठ के एकदम कूद मचानी चाहिए। We're justified. आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। Maybe you've had an argument with your husband or your wife even this morning and come into this meeting think, how can I worship God? और सुबह में यहाँ पे कलीसिया में आने से पहले हो सकता है आपके घर में थोड़ी चिड़चिड़ बिड़चिड़ होके आप यहाँ पर आए होंगे और आप ये कहते हैं मैं आराधना कैसे करूं? I've discovered a lot of husband-wife arguments happen just before the Sunday meeting. और मैं ये देखता हूँ कि पति पत्नियों के इसमें चिड़चिड़ बिड़चिड़ होती रहती है यहाँ पर सभा में आने से पहले। And we come inside the meeting feeling condemned. और हम सभा में आते हैं एकदम दोषी महसूस होके। All right. But here you have to learn to live in this truth.
और आपको इस बात को, इस सत्य में कैसे जीना, इस बात को जानना और I'm सीखना होगा। justified. हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं My husband's accusations और मेरे पति के जो दोष है cannot take me out of justification. मुझे धार्मिकता से बाहर नहीं निकाल सकते। My wife's accusations और मेरे बीवी ने जो मुझ पर दोष लगाए cannot take me out of justification. वो भी मुझे धार्मिकता से बाहर नहीं निकाल सकते Amen. हैं। We have to live with this. हमें इसके साथ जीना सीखना Lord, है। I'm justified. प्रभु मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ Even if someone else doesn't like me, और प्रभु हो सके सामने वाला मुझे पसंद ना करता हो even if someone else thinking bad of me, और हो सकता है कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा हो, I'm justified. मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ। Amen. He was raised to life for a justification. उसको मुर्दों में से जिलाया गया है ताकि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। Amen. But now, पर अब today we'll talk about, और आज हम इस बारे में बात करते हैं, but we've just come into the meeting with accusation. How do we live with this presently? और हो सकता है कि हम जो है इस बात को लेकर जो है दोष के साथ सभा में आए होंगे। I'm justified before God, हम परमेश्वर के सामने जो है धर्मी ठहराए जा चुके हैं, but I've got this problem with somebody else. और ये जो है मुझे एक समस्या है किसी और के साथ में, How do I live? मैं कैसे जीऊं? Okay, so we're going to see that today. और आज की सुबह में हम वो देखेंगे। The resurrection proves, this is my third point, the resurrection proves the power of God over present sin also. और पुनरुत्थान का सामर्थ जो है दिखाता है और साबित करता है परमेश्वर का सामर्थ आज के वर्तमान समय में भी, वर्तमान पाप के लिए भी। We've talked of one realm here और आप जो एक आयाम में यहाँ पर हैं and the realm of justification. और यहाँ पर जो है आप पुनरुत्थान के आयाम में हैं That's a position we have. और वो स्थान हमारे पास है। All right. But the resurrection gives us more than a position. और पुनरुत्थान जो है हमें एक स्थान से बढ़कर देता है। Our position is we are declared righteous before God. और हमारा जो स्थान है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया But है। the resurrection gives us more than that, because the resurrection speaks about in this realm our new life also. और पुनरुत्थान जो है इस आयाम में ये दिखाता है कि हमारे पास एक नया जीवन है। So we're going to look at Romans 5, रोमियो 5 देखेंगे, verse 16 and 17. 16वां और 17वां वचन। All right. Okay, I hope it's the which version is that? Do we have NIV? Can we have the NIV? Okay, I'm going to read it from here. Okay, listen carefully. गौर से सुनिएगा, इसे यहाँ से पढ़ने वाले हैं। Romans 5:16. रोमियो 5:16। Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. परमेश्वर की वरदान की तुलना किसी भी मनुष्य के अपराध से नहीं की जा सकती। Now, I want us to understand this. और मैं चाहता हूं इस बात को आप समझिए। The gift of God, we've just seen. What is it? God has put us in another realm, justification. और हमने अब भी देखा कि परमेश्वर ने हमें एक नए स्थान में, एक नए आयाम में रखा है, वो है धार्मिकता। This gift और ये जो वरदान है cannot be compared with the result of one man's sin decide. और एक व्यक्ति के बदौलत इस बारे में इस बात को नहीं कहा जा सकता। Okay, we know the story in Genesis. Adam sinned against God. और हम देखते हैं हम लोग जो शुरुआत होती कहानी की वो ये है कि आदम ने पाप किया। That's the one man's sin. वो एक व्यक्ति का पाप था, Adam. आदम। He sinned. उसने पाप किया The result of his sin और उसके पाप का नतीजा ये हुआ was putting us in this realm और वो ये था कि उसने हमें इस आयाम में ढकेल दिया। of law, व्यवस्था, of sin, पाप, of judgment, परमेश्वर का न्याय, of death. मृत्यु। This was the result
of one man, Adam's sin, on all of us. और ये एक व्यक्ति आदम के पाप करने का नतीजा था। Now the gift, और जो वरदान है this side, ये और वाला, cannot be compared with what that man did. और इसकी तुलना उस एक व्यक्ति के पाप से नहीं की जा सकती। Okay, it says the judgment followed one sin, और परमेश्वर का न्याय उस एक व्यक्ति के पाप का न्याय करता है and brought condemnation to everyone here. और सभी के ऊपर उसने दोष को ला दिया। Okay, so in this realm, all the time we are condemned. और यहाँ पर इस आयाम में, इस जगह पर हम हर बार जो है दोषी महसूस करते हैं। If we are human beings, अगर हम इंसान हैं, this is where we are. हम यहाँ पर हैं। We are born with condemnation. हमारा जन्म दोष के साथ We होता are है born facing it, and people accusing us, and everyone accusing us, and we are condemned. और यहाँ पर जो है लोग हमारे पर दोष मढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और हम जो है दोषी महसूस करते हैं। The gift, और जो वरदान है, you cannot even compare it. That is too small. और वो उसकी तुलना नहीं करी जा सकती क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत छोटी है परमेश्वर के Says, सामने। but the gift followed many trespasses and brought justification. किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया है उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। One sin एक पाप brought condemnation. उसने दोष को लेकर आया। Now, अब gather the sins of the whole world, अब सारे दुनिया भर के पाप को इकट्ठा कर लीजिए। not just one sin, एक पाप को नहीं, the whole world, पूरे संसार भर के पाप को। every person here, हम में से हर एक यहाँ पर all your sins, आपके सारे पाप, many trespasses. Where's that verse? आपके सारे अपराध, Many trespasses. बहुत सारे अपराध हैं। Okay, let's see what it says. देखता है आगे क्या कहता है। The gift followed many trespasses. और उस वरदान के अंदर आप सभी के जो अपराध है वो, And all the many trespasses about you are brought in front of God. और आपके विरुद्ध में जितने अपराध है जो परमेश्वर के सामने लाए गए हैं, It says it followed many trespasses, and God says, I justify. It brought justification. और जब वो परमेश्वर के सामने लाए जाते हैं वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें धार्मिक ठहराता हूँ, धर्मी ठहराता हूँ। Amen. This is what we saw last time. और पिछले हफ्ते हमने ये देखा It's in this verse also. और इस वचन में भी है, All right? We were raised to life for our justification. उसको मृत्यु में से जिलाया गया हमारी धार्मिकता के लिए। Amen. आमीन। So, dear church, प्यारी कलीसिया, dear people of God, परमेश्वर के प्यारे लोग, see, this is not just a message. ये सिर्फ कहने के लिए एक संदेश नहीं है, This is a solid truth, a solid doctrine. और ये जो है पक्की सच्चाई है, हकीकत है, और ये पक्की जो है सिद्धांत है That if we learn every day to take of it. कि आपको जब दिया जाए तब उसको ले लीजिए। Does anyone here not drink water every day? कि या कोई है जो पानी हर रोज नहीं पीता? Anyone who don't drink water every day? ऐसा कोई है जो पानी नहीं पीता कोई हर रोज? So everyone drinks. सब पीते हैं पानी। Many theologians say this. बहुत सारे जो तत्वज्ञानी ये कहते हैं You must drink this like you're drinking water. कि आपको जो है इसको पीना है जिस तरीके से आप जो है पानी पीते हैं Every day. हर रोज। To get up in the morning, आप सुबह में उठते हो, before you go out, बाहर जाने से पहले stand in this truth. इस सच्चाई में आप खड़े रहिए I'm justified. कि आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। Amen? आमीन। Stand, drink it, drink it. He actually uses the word, if this truth is lost, the church cannot exist for a moment. और वो ये कहते हैं कि अगर ये सत्य के बात लोगों से चूक जाती, कलीसिया का वजूद ही नहीं रहता। Will you drink it every day? क्या आप इस बात को हर रोज पिएंगे पानी के जैसे हर रोज? Every day. हर रोज, So we are strong. ताकि आप मजबूत बने। You see,
What does Paul write? Be strong in the grace of God. और पौलुस कहता है परमेश्वर के अनुग्रह में ताकतवर और मजबूत बनो। He says, be strong. और वो कहता है मजबूत बनो। You have to drink it आपको इस बात को पीना होगा every day, हर रोज, so that we have a church full of people who are strong, that when people accuse, you know, you can go into your prayer time and say, Lord, you're for me. I cannot be condemned by this. और जब इसको आप करोगे तो लोग चाहे आपके ऊपर कितने भी दोष मढ़े, आप जाओगे अपने प्रार्थना के समय में, आप कहोगे प्रभु से, प्रभु मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूं। Amen. Amen. That's the first part of the resurrection. ये जो है पहला भाग था पुनरुत्थान का। Okay. But the resurrection is much more than just a position. और पुनरुत्थान जो है वो बहुत बढ़कर है एक स्थान का, एक ओहदे से। It's talking about our new life. और ये बताता है हमारे नए जीवन के बारे में। Okay, so it goes on to say, और ये कहता है in verse 17, 17वें वचन में, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man in that realm, और वो ये कहता है कि एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही द्वारा प्रारंभ हुआ। I want us to catch the language of the Apostle Paul. और मैं चाहता हूं प्रेरित पौलुस की जो भाषा है उसका पकड़िए। If through the trespass of Adam in this realm death reigned, law, sin, accusation, judgment, the devil is the accuser of the brethren. Every day you get up feeling accused, condemned. Death reigned. और जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आदम के पाप करने की वजह से आप इस आयाम में ढकेले जाते, जहां पर आपका पर जो है व्यवस्था आती है, आपके ऊपर पाप आता है, आपके ऊपर शैतान जो है वो दोष लगाते रहता है, आप दोष लोग आपके ऊपर लगाते रहते हैं। We know the reality of sin. We know the reality of condemnation. हम जानते हैं इन बातों की हकीकत को, अपराध की हकीकत को, जो आपके ऊपर दोष लगा उस बात की हकीकत को। And we know what it's like here. और हम सभी को पता है कि यहाँ पर क्या महसूस होता है। And if Adam's sin has done this to us, अगर आदम के पाप ने हमें ये कर दिया है, now let's catch the language of the Apostle Paul. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की भाषा को, How much more will those who receive justification reign in life through the one man Jesus Christ this side? और किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक जिन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह तथा धार्मिकता का वरदान प्रचार की प्रचुर की मात्रा में मिलेगा, वो एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा। Death reigns here. और मृत्यु जो है यहाँ पर राज करती है। You reign this side. और आप इस जगह पर राज्य करते हैं। Amen. And Paul wants us to bring us to the truth of the resurrection. और पौलुस जो है हमें पुनरुत्थान के सत्य की ओर लेकर जाना चाहते हैं। He says, और वो ये कहते हैं your experience and what you know this side कि मैं जानता हूं तुम्हारा अनुभव क्या है और तुम्हारा अनुभव क्या रहा है इस जगह के बारे में, cannot be compared with what's this side. और उसकी तुलना जो है यहाँ पर जो हो रहा है उससे की भी नहीं जा सकती। You know the power of sin this side. और तुमको जो है पाप के सामर्थ्य का में पता है इस जगह में, You've already positionally come here. और तुमको उठा के वहां रखा गया है यहाँ पर। And this is the truth और ये सत्य है about this side. इस जगह के बारे में। How much more कितना compared with ही that ज्यादा will you कि तुम reign in life? जीवन में राज्य करते हो। Amen. You're not going to be all the time saying, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You're also going to overcome sin now. Here this side. और यहाँ पर आप आके सिर्फ माफी 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 सिर्फ यही नहीं करते, यहाँ पर आके आप पाप भी यहाँ पर आके आप छोड़ देंगे। Amen. Tell someone next to you, so far, what have you got? What solid truth have you got just now? अपने बाजू वाले जो है व्यक्ति से आप कहिए कि अभी तक जो कुछ आपने सुना उसमें से क्या सत्य आपको मिला, What have you received just now? क्या मिला Tell आपको someone. आज की सुबह में।
Amen. Okay, let's carry on. Let's carry आइए on. आगे बढ़ते हैं। Okay, I want us to begin to now apply this truth. और मैं चाहता हूं कि इन सत्य की बातों को आप अपने जीवन में लागू करना सीखे, इन बातों को आप अमल में लेकर आइए। This side, death reigns. और इस जगह पर मृत्यु राज करती है, This side, every Christian reigns. और यहाँ पर हर एक क्रिस्ती, हर एक मसीह जो है यहाँ पर राज्य करता है। So why do we live so defeated lives? और यहाँ पर होने के बावजूद भी हम एकदम हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? It's because we've not understood what we have received in the resurrection fully. क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुनरुत्थान में हमें क्या मिला है, पूरी तौर पे हमने इसको जान नहीं पाए हैं। God wants all of us परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक to reign in life. आप अपने जीवन में राज्य करें। Amen. So Jesus didn't just die for our sin. यीशु मसीह सिर्फ हमारे पाप के लिए नहीं मरे, He's not only dealt with past sin in our lives, सिर्फ हमारे जो बीत गए उन पापों के लिए वो नहीं मरे। the resurrection breaks the power of all sin, even present sin. और पुनरुत्थान का सामर्थ ऐसा है कि वो अभी के और आने वाले सारे पापों से निपटता है। And God wants us to start reigning over sin on this side. और परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के ऊपर राज्य करें, यहाँ पर जब हमारा स्थान बदला हुआ है उसमें। Amen. Amen. Encourage your neighbor. Listen, you're going to start a new dimension of reigning over sin. और आप जो है अपने बगल में व्यक्ति से ये कहिए कि हम जो है एक नए स्तर पर जाने वाले हैं, जहां पर पहले पाप हम पर राज्य करता था और इसके बदले हम पाप के ऊपर राज्य करेंगे। Come on, tell your neighbor, reign over life in life. अपने बगल वाले व्यक्ति से, अपने बाजू वाले से कहिए इस बात को। Okay. Amen. So have we understood our position? अभी आपको समझ में, आप कहाँ खड़े हो? You've understood your position? आप समझ गए आप कहाँ पे हो अभी? Okay. Now, you are justified. आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं। So when you sin, if you sin, अगर आप पाप करते हैं, this is what you do. आपको ये करना है। 1 John 1:9 says, 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, if you confess your sin, अगर आप अपने पाप को कबूल करते हैं, he is just and faithful, वो धर्मी और विश्वास योग्य है, and he will forgive you of your sin. और उस पाप के लिए वो आपको माफ करेगा। Amen. So this side, confess your sin. God is just and faithful. He will forgive. और यहाँ पर जब आप हो, आप अपने पाप की कबूली परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर दया है और वो आपको माफ करेंगे। All right? There's no condemnation. आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष नहीं लगाया So जाएगा, you go and ask forgiveness. और इसलिए आप जाके वहां पर माफी मांग He सकते will हैं। forgive you your sin, आपको आपके पाप के लिए माफी करेंगे, and then it says something more. और वो एक और कहेंगे, And he will purify you from all unrighteousness. और आपकी जो अधार्मिकता है उससे आपको शुद्ध करेंगे। So we are not here all the time to sin and say sorry. There's also a purifying where we overcome sin. और हम जो है इस स्थान पे इसलिए नहीं है ताकि हम पाप करें और बार बार पाप करें, बार बार क्षमा मांगे, बल्कि वो नहीं, वो ये है कि Amen. वो हमको अंदर से शुद्ध करेंगे ताकि हम पाप के ऊपर विजय हो सके। Amen. So here's what we have to understand and receive in our hearts and in our minds. और इस बात को हमको समझना है, हमारे दिल और दिमाग में इस बात को उतार लेना है। Okay. Number one, सबसे पहला, how do we overcome sin this side? और कैसे हम पाप के ऊपर जीते इस जगह पर? The Bible says this. बाइबल ये कहती है, The same power that raised Jesus from the dead वही सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, is now living inside you. वो सामर्थ
आपके अंदर निवास कर रही है। So you and I have to understand और आपको और मुझको समझना है, that if we do wrong, we say, sorry, Lord. और जब हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, But now we receive something more. और हमें कुछ और भी मिलता है। The power that raised Jesus is inside me. और जो सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वही सामर्थ आपके और मेरे अंदर निवास करती है। Romans 8:11 says this. रोमियो 8:11 ये कहता है, And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, और वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वही सामर्थ तुम में निवास करती है। what will he give? He will give life to your mortal bodies. और वो क्या करता है? वो आपके शरीरों में जो है जीवन देता है, जान डालता है। You will reign in life. आप अपने जीवन में राज करेंगे। Amen. Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? So number one, सबसे पहला, again, take these scriptures down and learn to speak it daily to yourself. वचन को लेना और वचन को हर रोज उसका अंगीकार करना, उसको बोलना सीखिए। If I'm going to be a conqueror, I have to realize the power of the resurrection is inside me. अगर आपको एक विजेता के जैसे जीना है, तो इस बात को याद रखना होगा कि जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में से जिला सकती है, वो सामर्थ आपके अंदर है। Okay. The power of the resurrection raised Jesus, raised a dead body to life. जो जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को, उनके शरीर को जो मृत्यु था उसके अंदर जान डाल दी, उसको पुनरुत्थान, उसको जीवित किया। Now tell me something. Do you think that power can help you not to sin? और मुझे एक बात बताइए, क्या ये सामर्थ आपकी मदद करेगा कि आप पाप ना करें? Or is it too small? क्या ये बहुत छोटा है? That power is not enough. वो सामर्थ बहुत छोटा है, बहुत कम है। क्या लगता है Is आपको? it too small क्या वो सामर्थ छोटा है? for you to say no to sin? क्या इतना छोटा है कि आप पाप को ना नहीं बोल सकते? It raised Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह को It's जिलाया, inside you. वो आपके अंदर है। You're not giving me an answer. Is that power too small? क्या वो सामर्थ छोटा है? No. So here's my question. ये मेरा सवाल है आपके लिए। Why are we sinning? फिर हम पाप क्यों कर रहे हैं? I'll tell you why. आपको बताता And हूँ here's क्यों। what we have to understand. यहाँ पर हमको समझना बहुत जरूरी है। When we were this side, जब हम उस ओर थे, temptation came, प्रलोभन आया, we had to sin. हमें पाप करना ही पड़ा। We were sinners. हम पापी थे, There's no choice. और कोई चुनाव नहीं था। The Bible describes it as we are slaves to sin. बाइबल ये कहता है हम पाप के गुलाम हैं। This side, यहाँ पर we are not slaves to sin. अब हम पाप के गुलाम नहीं है। So when we sin, जब हम पाप करते हैं, we have the power to say no. हमारे पास वो सामर्थ है कि हम ना कर सकते हैं। We are choosing not to say no हम चुनाव करते हैं कि हम पाप को मना नहीं करते, because we are enjoying the sin क्योंकि हमें पाप करने में मजा आता है as Christians. मसीह होने के नाते। You agree with me? क्या आप Yeah. सहमत है मुझसे? Let's not fool ourselves. अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। Sin is pleasurable. पाप जो है आनंददायी है। Otherwise, we will not sin if we didn't like it. अगर आनंददायी नहीं होता तो हम पाप ही नहीं करते। So when we sin this side, और जब हम इस जोर आते हैं, because we like it, हम पसंद करते हैं, and we don't want to say no. और हम ना कहने से कतराते भी नहीं। We have the power to say no. हमारे पास सामर्थ है पाप को ना कहने की, We don't want to say no. हम उसको ना नहीं कहते हैं। So on this side, जब आप इस ओर हैं, we are choosing to sin. हम खुद चुनाव करते हैं पाप करने का। On this side, यहाँ पर we had no choice. हमारे पास और कोई चुनाव नहीं होता था। Amen. Now, if we understand this, अगर इस बात को समझ लेते हैं we'll draw on the power of Jesus much more. और हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को जान लेते हैं, All right? And you know how we choose to say no? और आप देखते हैं कैसे हम ना कहते हैं। Arey, but I'm like this, no? अरे मैं I'm तो like ऐसा this हूँ only. ना। You know me. I'm like this only. अरे तू तो मुझे जानता है, मैं तो ऐसा ही हूँ।
हाँ, थोड़ा थोड़ा लोग मुस्कुराते हैं. You know, I am like this. You know how angry I am. No, you already know. So don't tell me all that. बोलता है, अरे तू तो जानता है ना मुझे, मैं तो वैसा ही हूँ पहले से। अरे मुझे गुस्सा आता है, तुझे पता नहीं है क्या, मैं तो ऐसा ही हूँ। When someone does you wrong, जब आपके साथ कोई गलत करता है, you feel very righteous. आप जो है एकदम धर्मी आ जाते हैं They आप आपके did me अंदर। wrong, no? अरे मेरे साथ गलत किया उन्होंने, Obviously, I can't forgive them और इस जाहिर से बात है उनको माफ नहीं until कर they सकता। say sorry. और मैं माफी क्यों मांगू? Now you tell me which side are you living, this side or this side? और आप मुझे बता, आप यहाँ पर हो कि आप वहां पर हो? See, the power of the resurrection और पुनरुत्थान का सामर्थ, will help you to say, to help you forgive anyway. और पुनरुत्थान का सामर्थ आपसे ये कहेगा कि मुझे सामर्थ दे, अनुग्रह दे, ताकि मैं माफ कर सकूं। Amen. So, number one, the power of the resurrection is inside you. सबसे पहली बात, Understand it. पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर Number है। two, दूसरी बात, if you are sinning, it's because you are choosing to sin. अगर आप पाप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पाप करने का चुनाव आप खुद कर रहे हैं। Number three, तीसरी बात, okay, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians If 5:17, anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. और वचन ये कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना जा चुका है और आप नए हो। When you believed in Christ, जब आपने मसीह पर विश्वास किया, it says the old is gone. और वो ये कहता है पुराना जा चुका। Today, if you're sitting believing in Christ here, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, मसीह के पर विश्वास करते हैं, you're not an old man, old woman who's been repaired. और आप जो है वो एक पुराने व्यक्ति नहीं हो जो पहले जो होता है निंदा और विरोध करता था। The old person, the old Jack, the old Nigel is gone. और जो पुराना जैक था, उस पुराने जो अंकल नाइजल थे, वो जा चुके हैं। We're not repaired. और हम जो है It's अभी ये gone. नहीं करते, वो जा चुका है। The new has come. और जो नया है वो आ गया है, We are brand new. और हम जो एकदम नए We हैं। have to understand. Thirdly, we are brand new. और इस बात को जानना बहुत जरूरी है, हम एकदम नए हैं। When we believed in Christ, God made a new creation, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम नए हो गए। a new DNA, हमारे अंदर, हमारे जो अंदर के कण कण जो है वो बदल के एकदम नए हो गए, where the Spirit of God is in me. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे में है। The character of God is in me. His परमेश्वर nature. का चरित्र हमारे अंदर है। You know, if you do wrong, are you happy? अब मुझे बताइए, जब आप गलत करते हो क्या आप खुश होते हो? Tell me, come on, tell me. Are you happy when you do a sin? जब आप पाप करते हो आपको अच्छा लगता है? Yes or no? आया ना? कोई हाँ सुन रहे इधर। किसी ने तो हाँ बोला यहाँ पर जब लगता मैं है। पाप करता है मैं खुश है। Now you're enjoying the pleasure of sin, but you're not happy. क्या आप पाप का आनंद है, पर क्या आप खुश हैं उस पाप में? Okay, you're not happy. Why are you not happy? Think about it. अगर आप पाप करके खुश नहीं है, तो आप खुश क्यों नहीं है? Because God's character is inside you. क्योंकि परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर है, God's spirit is inside you. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, You're made new. और आपको नया बनाया गया है, That's why you cannot be happy. और इसीलिए आप खुश नहीं Amen. रह सकते। Amen. आमीन। All right. So, we have to understand something. और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, Inside me is a desire to only do what's right and good and loving. हमारे अंदर एक चाहत है कि हम अच्छा करें और जो सही है वो करें, And if we are doing unloving things, और हम जो है गलत चीजें करते हैं, we are living here हम यहाँ पर जी रहे हैं instead of living here. यहाँ जीने के बजाय। If we do not forgive, अगर हम माफ नहीं करते, we are living here हम यहाँ पर रह रहे हैं instead of living here. यहाँ रहने के बजाय। Amen. आमीन। You're a new creation. हम एक नई सृष्टि हैं। The desire is to only do good. Realize, understand that.
इस बात को जानना बहुत जरूरी है। So never think, Arey, I'm sinning now. Finally, I'm the same person like before. No, you're not the same person. आप ऐसे मत कभी कहिएगा, अरे मैं तो पाप कर ही रहा हूं, मैं वो वही व्यक्ति हूं। And if we think we are the same old person, that's why we end up here. और अगर हम ये सोचते हैं तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। Amen. आमीन। Are you the old person? क्या आप वो पुराने व्यक्ति हो? Are you the old person? क्या आप वो पुराने व्यक्ति First, हो? I'm going to ask in English only. Are you the old person? हिंदी में, क्या आप वो पुराने व्यक्ति हो? No, every day speak that. और ये जो आपने बोला, इसको हर रोज बोलते रहिए। Okay? If you've been used to being angry, अगर आप जो है पहले से गुस्सा करते हुए आ रहे थे and again you're being angry, और अब वापस से गुस्सा कर रहे हो, why are you being angry? आप गुस्सा क्यों हो? You speak the truth. आप सत्य को बोलिए। I'm a new creation. मैं परमेश्वर की नई सृष्टि हूँ। I'm being angry मैं गुस्सा कर रहा हूँ because either I'm self-righteous और हो सकता है कि मैं अपनी खुद की धार्मिकता लेके चलता हूँ and I like telling other people they are wrong. और दूसरों को बताना जरूरी समझता हूँ कि वो गलत So है, I'm living this side. तो मैं इस ओर जी रहा हूँ। Amen. आमीन। Don't be angry. गुस्सा मत करिए। You are a new creation. आप परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। Embrace. If we have the power of God, this is what we have to do. If we have the power of God, we have to embrace new patterns in our lives. अगर हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है तो हमें जीने की नई शैलियों को अपनाना होगा We have to embrace new habits, और हमें जो है अपनी आदतों को देखना होगा, even in our relationships, हमारे रिश्तों संबंधों में, so that it reflects the resurrection life. ताकि उसमें पुनरुत्थान का जीवन दिखे। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, do you have the resurrection power? क्या आपके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ है? Yes, say it. Yes. अगर है तो हाँ कहिए। Sure. Yes. Okay. Someone will tell you, कोई आपसे कहेगा, अरे you're a Christian, यार कितना गाली देता है, बोलते हैं बाबा क्रिस्ती लोग कितना गाली देता है, तो तुरंत बोलने का हाँ मैं पाप किया लेकिन मैं नया सृष्टि है, मैं बदल करेंगे. Is that right? Whatever. Amen. Listen, सुनिए, I want us to understand और मैं चाहता हूं इस बात को आप समझें। this side. जब आप इस ओर हैं, We must reign in life. हम अपने जीवन के अंदर राज्य करना चाहिए। How many want to reign in life? कितने लोग जीवन पर राज करना चाहते हैं? Come on, let's go for it. आइए आगे बढ़े उसमें। Okay. I'm going to challenge you on something. और मैं आपको चुनौती दूंगा एक चीज में। We have to practice. हमें इसको जो है बार बार उसको करना होगा, If प्रैक्टिस you're इसकी an करनी angry होगी। person, tell someone else, keep a track on me. अगर आप गुस्सैल व्यक्ति हैं तो किसी व्यक्ति को इस बारे में बताएं ताकि वो व्यक्ति आपकी देखरेख करे। As a Christian brother or sister, please check up on me on this area. और किसी मसीह भाई बहन को पकड़िए और उनको कहिए कि इस क्षेत्र में आप मेरी निगरानी करें। Because I don't want to be angry. I want to get less and less angry. और उसको आप ये बताइए ताकि मैं बदलना Amen. चाहता हूँ, जो मैं एकदम गुस्सैल वाला व्यक्ति हूँ, मैं जो है और कम गुस्सा करना चाहता We हूँ। have the power to make choices. हमारे पास सामर्थ है कि हम अपने चुनाव करें। And so now in that choice, you're also getting a brother or sister say, help me, keep an account because I don't trust myself. और अपने एक मसीह भाई या बहन को आप जाके इस बात को बताइए, क्योंकि आप जो है इस बात की वो निगरानी करें आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। Is that okay? क्या ये ठीक है? Jesus took 12 men, but he could see them and talk things to them. यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को लिया और उन 12 शिष्यों को वो कहता था जो उसको लगता था उनके बारे में। You've got to decide. आपको इस बात को चुनना है। Amen? Yes? हाँ, Listen, सुनिए, God wants us to reign.
परमेश्वर चाहते हैं कि आप राज करें He will always forgive us. और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें But he says, I've purified you. Reign, start reigning in life. और वो ये कहता है मैंने तुम्हें शुद्ध किया है, जीवन पर राज करना सीखो. Amen. Okay. And you see Paul's purpose in this now. और हम देखते हैं परमेश्वर का मकसद इस समय में. Philippians 3:10. फिलिपियों 3:10. See, we often want the power of the resurrection through healing. और हम जो है पुनरुत्थान का सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं जब हमें चंगाई चाहिए होता है. And how many of you want to see healings regularly? और कितने लोगों को लगातार तौर पे चंगाई को Come देखना on, है. don't put it half, put it right up there. सीधे हाथ ऊपर करिए. Yeah, I also want, and I've been praying this morning before coming. Every Sunday, I'm praying, God, I want to see your power in people being healed, so they believe in you, not just in us preaching here. और मैं जब भी यहाँ पर यहाँ सभा से पहले आने से पहले मैं यह प्रार्थना करता प्रभु हमें आपके सामर्थ को देखना है और लोग चंगे होने चाहिए ताकि उनको चंगा उनके गवाहियों को देख के औरों का विश्वास बढ़े. Okay, we heard testimonies. Today was 9 years of prayer, persevering, believing. God did it. हमने देखा आज की सुबह में गवाही को 9 साल की प्रार्थना बिना थके बिना रुके उन्होंने किया और परमेश्वर ने जवाब दिया. All right, Belinda talking, Lord, this year in the special offering, I want to really hear you. What do you want me? And she got, I don't know, you got 1.5 times more. She didn't say that. She got 1.5 times more than the big figure that she put into the offering. और आंटी बेलिंडा ने जिस तरीके से गवाही दी जो परमेश्वर ने उनको कहा डालने के लिए वो परमेश्वर ने उनको 1.5 गुना दिया जितना उन्होंने डाला था उसके. That's the resurrection power. और ये पुनरुत्थान का सामर्थ है. Where we believe for impossible things. जब आप नामुमकिन चीजों के लिए विश्वास करते हैं. But I don't want us to miss out the main thing. और मैं नहीं चाहता कि आप जो अहम बातों से आप And here's what Paul writes. और यहाँ पर पौलुस In लिखता है Philippians 3:10, he फिलिपियों says, 3:10 में ये कहता है I want to know Christ. मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं. I want to know the power of his resurrection. उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करूं. He doesn't stop there. वहां पर रुकता नहीं है. We all want the power of the resurrection in healing and breakthroughs. हमें पुनरुत्थान का सामर्थ चाहिए, चंगाई चाहिए, सारी बेदारी But चाहिए. here's the main thing. यहाँ पर अहम चीज I want है to know the power of his resurrection उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ and the participation in his sufferings. और उसकी संघर्ष में उसके जो दुख भोगने में उसका सहभागी बन जाऊं. Becoming like Jesus in his death. यीशु मसीह उसके मौत मृत्यु में जैसे थे वैसे बनूं. And so somehow attaining to the resurrection of the dead. और फिर उसके बाद मैं मृत्यु में से जिलाया जाऊं. Now, we can find inside this apostle's heart the power of the resurrection. He is giving us doctrine. और हम देखते हैं उस प्रेरित के हृदय को वो हमें जो है हमें सिद्धांत दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं. That when we believe in the resurrection, we live with such a purpose. और जब हम पुनरुत्थान का जीवन जीते हैं हम एक मकसद के साथ जीते हैं. Paul wanted to know the power, not just believe it. He said, I want to know that power in my life. और वो इस सामर्थ को जानना ही नहीं चाहते बल्कि उसका अनुभव करना चाहते थे अपने जीवन Where is में. it? कहां पर है? Here in the participation of the sufferings of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग की सहभागिता में. His ambition, you can see this is his ambition. और ये उसकी दिली ख्वाहिश है To know the power of the resurrection. मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को जानने की. By handling suffering like a true disciple. और उस दुख भोग में सहभागी बनना एक सच्चे चेले के रूप में. As much as he learned to stand in his position in justification, और जितना उन्होंने सीखा कि धार्मिकता में रहने के बारे में, he also made it his ambition to know the power of the resurrection in his life through suffering. और उस सामर्थ को जानना अपने जीवन में उस दुख भोगने के जरिए. And he said, so that I become like him in his death.
ताकि मैं उसके जैसे बन जाऊं उसकी मृत्यु में। He knows he's justified, वो जानता है कि वो धर्मी ठहराया but जा he's चुका है, got this fierce desire और ये जो है उसकी तमन्ना है उसकी, that he has to deal with sin. He has to kill sin inside him. He has to crucify it, becoming like Jesus in his death. और ये है कि उसको पाप के पर विजय हासिल करनी है, और उसको अपने आप के अंदर जो पाप की करने की इच्छा है उसको मारना है, और अपने आप को सूली पर चढ़ाना, जैसे प्रभु को देखता है वो। So, in his purpose and ambition, is I have to crucify this body of flesh, its affections. I have to put it to death, crucify it like Jesus died. और वो इसके दिल की ख्वाहिश है कि मैंने अपने आप अंदर के पाप को मारा है, और अपने शरीर को जो अभिलाषा से भरा हुआ है उसको मसीह की तरह क्रूस पर चढ़ाया है। I have to crucify the passions and the patterns of the world. और इस संसार के जो सदृश्य ना होकर अपने अंदर की जो गलत अभिलाषा है उनको सूली पर चढ़ाना है। I got to deal with present sin in my life. और जो वर्तमान के जो पाप है मुझे उनसे निपटना है। Nobody wants to say amen. Only one person. कोई सिर्फ एक व्यक्ति आमेन कहता है, For healing, we'll all say amen. और चंगाई के लिए हम सभी लोग आमेन कहते हैं, Financial breakthroughs, amen. और पैसे की बेदारी में सभी लोग आमेन कहते हैं, Suffering, और दुख भोगने में। listen. सुनिए, He says, somehow I want to attain to the resurrection of the dead. और वो ये कहता है ताकि मैं उसके जैसे पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं। He is speaking as though, Lord, I don't want to be in the danger of missing what happens at the resurrection. और प्रभु वो इस तरीके से ये कर रहा है, प्रभु मैं इस बात से चूकना नहीं चाहता जो पुनरुत्थान का सामर्थ उसमें। I don't want to have something less at the resurrection day. और प्रभु पुनरुत्थान के दिन में मैं कुछ कम ऐसा हासिल नहीं करना चाहता। I want to attain a great resurrection. और प्रभु जब मैं जिलाया जाऊं तो वो पुनरुत्थान महान हो, And I have this holy fear, God. और मेरे अंदर ये परमेश्वर का पवित्र डर है। I carry in me a holy fear so that I will get a great resurrection. मेरे अंदर एक पवित्र डर इसलिए है ताकि जो मेरा पुनरुत्थान होगा वो महान होगा। Amen. And so, to live and reign in life, कि जीवन में रहना और उस पे राज करना, we have to overcome temptation हमें जो है प्रलोभन के पर विजय हासिल करनी होगी consistently. लगातार। Number two, दूसरी बात, we love radically even people who don't love us. हम उन लोगों को प्रेम करेंगे जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। Number three, we serve sacrificially, though I don't feel like serving. और बलिदान तौर पे हम सेवा करेंगे जब हमको लगता होगा कि हम सेवा भी ना करें। Amen. आमीन। And listen, और सुनिए, Hebrews 12:4 इब्रानियों 12:4 talks about some of the suffering. और ये कुछ पीड़ाओं के बारे में, वो कुछ दुख के बारे में बताता है, दुख भोगने के बारे में बताता है। In your struggle against sin, और तुम्हारे पाप के संघर्ष में you have not yet resisted to the point of shedding blood. तुमने तब तक जो है विरोध नहीं किया तुम्हारे खून बहने तक। Jesus in the Garden of Gethsemane did not want to take all that sin on him. Such was his agony that he sweat drops of blood. और जब प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में थे, वो पाप को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। वो इतनी पीड़ा में थे, इतने तनाव में थे, ऐसी घंघोर पीड़ा में थे कि उनके माथे से टपकने वाला पसीना जो था वो खून बन के गिरने लगा। The writer to the Hebrews is saying, और इब्रानियों लिखने वाला ये कह रहा है to all Christians, सारे मसीहों के लिए, you've not struggled to the point, you've not struggled with sin to the point of shedding your blood. आपने पाप के साथ ऐसा संघर्ष नहीं किया हो कि आपका खून गिरने लग जाए। You easily give in. You easily give in to sin. आप अपने आप को पाप में ऐसे झोंक देते हैं। Easily you say, I'm not talking to that person.
और आप ये कहते हैं नहीं मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, God didn't bless me, I won't put my tithes and offerings. परमेश्वर ने मेरे को आशीष नहीं दिया, मैं दान दशमांश नहीं दूंगा। All right? God's not doing anything for me, I'm not coming to the church. God's not doing anything, I'm not और coming to परमेश्वर church. मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, मैं कलीसिया नहीं आ रहा। You see, we don't see sin and we don't struggle with sin, but this is suffering. We learn to struggle with sin. देखिए हम पाप को देखते हैं और पाप का संघर्ष नहीं करते हैं, और वचन में लिखा है कि हमें पाप के साथ Amen. उसके संघर्ष करना है। On this side, जब आप यहाँ पर हो, we are justified. हम धर्मी ठहराए जा चुके But हैं, God says, I want you to reign in life. और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में राज करो, Struggle with sin. पाप के साथ संघर्ष करो, That should be your ambition. और ये तुम्हारी ख्वाहिश होनी चाहिए। Amen. Come on, someone say amen. कोई आमीन कहे। Stop easily giving into sin. और अपने आप को पाप में झोंक देना, अपने आप को आसानी से दे देना बंद करें। Stop easily not forgiving people. Don't do that. लोगों को आप जो माफ कर नहीं करते तो उसको कर, आप उस बात को छोड़ दें। Stop easily being angry. और ऐसे ही गुस्सा हो जाना जो है आप छोड़ दें। Stop easily gossiping. और जब आप आसानी से जो चुगली कर देते उसको बंद करें। Amen. Listen, church, सुनिए कलीसिया, you're on this side. I want to tell you, you're on this side. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप इस ओर हैं। And if you decide to sin, अगर आप अपना मन बनाते पाप करने का, you're still not that side. आप उस जगह पर हो, But you're choosing to do the things of that side, और अगर आप चुनाव करते उन चीजों को करने का, even though you're this side. आप यहाँ रह के भी वो कर रहे हो। Catch the heart of Paul. पौलुस के उस दिल को, उस हृदय को पकड़िए, Say, God, I want to have a great resurrection और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं एक महान पुनरुत्थान Amen. चाहता हूँ। where you're not ashamed. और आप जो है इस बात के लिए लज्जित When नहीं we है। stand before God आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं on the last day, उस दिन पर, you can go with the confidence. उस आत्मविश्वास के साथ आप जा सकते हैं Lord, I struggled against sin कि प्रभु मैंने पाप के साथ संघर्ष करा and I did your will. और मैंने आपकी Amen. इच्छा को पूरा I'll करा। just close with the story of Joseph. और यूसुफ की कहानी के साथ खत्म करूंगा। You know his story. आप जानते हैं इस कहानी को, His brothers betrayed him. उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, I don't know if anyone's been betrayed like that, और मुझे नहीं पता क्या किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं, but God showed what it is to live this side through the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया कि इस ओर जीने का मतलब क्या है। Even before they came and said sorry, और उनके आके माफी मांगने से भी पहले, even before he dealt with the pain of the betrayal of his own family, और जो उसके परिवार ने उसको चोट पहुंचाई उसको बर्दाश्त किया, he lived in a place where he had already forgiven them. और उस स्थान इतने होने के बावजूद भी वो उस Amen. स्थान पर जिया जहां पर उसने अपने परिवार वालों को माफ किया। Have a great resurrection life. आपका जीवन में वो पुनरुत्थान का आपका जो जीवन है वो महान हो। Come, let's stand. Alex. परमेश्वर आपका आशीष दे, आप खड़े हो जाएं।